Hello student, in this session we'll be learning some of the aspect of chapter force. Okay, in this chapter we'll be learning the classification of force, that is contact and non-contact force, and this contact force may be further divided into frictional force, normal force, tension force and spring force, as you can see in this PDF. And the non-contact force is further divided into gravitational force, electrostatic force and magnetic force. Okay, so let us discuss the force first. What is force? Force, as you can see in this definition, the force is defined as an external effort in the form of push and pull acting on the body that will change the state of rest or uniform motion of a body, and it can also change the shape and size of the body. So what does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है, ऐसे ही रेस्ट में रखा हुआ है, अगर मैं फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, सो ये क्या कर देगा, इसको मोशन में ला देगा. सो दैट मीन्स कि इट विल स्टार्ट मूविंग. ठीक है, एंड इफ इट इज एट यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो कंटिन्यूस मोशन में है, ठीक है, और मैं फोर्स लगाता हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, ये इधर मूव कर रहा है, इधर ही अप्लाई करता हूँ मैं, सो दैट मीन्स कि इसकी स्पीड बढ़ाता चला जाएगा. तो फोर्स विल टेंड टू इंक्रीज इट स्पीड. सच अ मोशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन. If I'll apply a force opposite to the direction of motion of the body, that means कि body ऐसे move कर रहा था continuously, अब मैं apply कर रहा हूँ opposite direction में force, तो that means कि इसकी speed धीरे धीरे कम होती जाएगी. Such a motion is called as decelerated motion or negative acceleration. Okay, so and the SI unit of force is Newton and CGS unit of force is Dyne, and this is the relationship between CGS and SI unit of force. It is 1 Newton is 10 raised to power 5 Dyne. Okay, so now let us discuss about what is contact and non-contact force now. As the name implies, contact means कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के physical contact में रहना चाहिए. So the forces which comes into play whenever a body is in physical contact with another body, such a force is called as contact force. And for contact force may be further divided into frictional force, normal force, tension force and spring force. एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट मीन्स कि अगर दो बॉडीज के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, सपोज करो दिस इज वन बॉडी एंड दिस इज अनदर बॉडी, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. ठीक है, अगर नहीं भी होगा तभी भी लगेगा. सो सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सो let us discuss first what is normal reaction force. This is the classification of contact force. Normal force क्या होता है, and what is it is also called as reaction force. अगर देखो किसी भी बॉडी का अगर मास होगा तो उस पर वेट एक्ट करेगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड इफ दिस बॉडी इज हुज मास इज m, so it will be attracted toward the center of earth with a force which is called as its weight, and it is equivalent to m into g. अगर m इसका मास है, सो mg फोर्स से नीचे जाना चाहेगा. ठीक है, सो अगर मैं इसको अपने पाम पे रख दूं तो ये द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज जीरो, इट इज नॉट मूविंग. तो दैट मीन्स कि कोई तो फोर्स है जो इसको डाउनवर्ड जाने से रोक रहा है. दैट फोर्स इज कॉल्ड एज नॉर्मल फोर्स और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिएक्शन फोर्स. ठीक है, उसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं. ये नीचे जाना चाहेगा बट कोई तो फोर्स है जिसको रोक रहे हैं, दैट इज रिएक्शन फोर्स. सो एक्शन का रिएक्शन, वेट इज द एक्शन ओवर हियर and normal is an reaction of this action force. So that means कि in this particular case the normal force is equivalent to weight. So net force इस body पे zero होगा. ठीक है, so normal is always acting upward and weight is taking this block to in downward direction. ठीक है, so और एक चीज और याद रखना, normal force always acts perpendicular to the surface. ये दोनों surfaces के contact में हैं और हमेशा upward लग रहा है. So इसके perpendicular लग रहा है, इन दोनों surfaces के perpendicular लग रहा है, and it is always acting upward. Okay, so now let us talk about what is frictional force first. ठीक है, तो frictional force is that opposing force which always comes into play whenever one body tends to move or is moving on another body. देखो ये बॉडी है, इसको मैं अगर एक्सटर्नल ये इस पे रखा हुआ है मेरे पाम पे, इसमें फोर्स लगाता हूँ फ्रॉम राइट, सो इट इज़ नॉट मूविंग. सो इट इज़ नाउ मैं फोर्स बढ़ाता चला जाता हूँ, नाउ इट विल टेंड टू मूव. सो पहले ये मूव नहीं कर रहा था, अगर मैं जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ विच इज़ ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, सो दैट देन इट विल मूव. ठीक है, सो अगर पहले नहीं मूव कर रहा तो दैट मीन्स इट वाज टेंड टू मूव, वो मूव करने वाला था. सो
एंड सो जो फोर्स एक्ट कर रहा है इन दोनों सरफेसेस के बीच में, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स. ऑब्वियसली हायर द रफनेस ऑफ दिस सरफेस, हायर वुड बी द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. ओके, सो अगर फोर्स मैं एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा अप्लाई करूंगा तभी ये मूव करेगा, अदरवाइज ये मूव नहीं करेगा. अगर ज़्यादा भी इफ द फोर्स इज ग्रेटर देन ओनली फ्रिक्शन विल act, and it always acts in the opposite direction to the direction of motion of the body. ये इस तरफ लेफ्ट में मूव करना चाहेगा, ठीक है, बट frictional force would be in towards right, so it is always opposite to the direction of motion of body. So that means it will always oppose the relative motion, दोनों के बीच का motion, surfaces के बीच का motion को oppose करेगा, and it always produces heating effect. So that's why हम कह सकते हैं it is also called as necessary evil. And why it is called necessity? Because without friction we won't be able to speak, without friction we won't be able to walk, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे without friction. So that's why we can say that friction is a necessary evil. And evil क्यों है? क्योंकि because इसका हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और मशीनरी पार्ट्स, मान लो अगर फैक्ट्रीज वगैरह में जो वीर एंड टीयर होने, एक मशीनरी पार्ट दूसरे मशीनरी पार्ट्स के फिजिकल कांटेक्ट में रहता है एंड दे आर इन कंटिन्यूस मोशन, तो क्या करेगा फ्रिक्शन उन मशीनरी पार्ट्स को वीयर एंड टीयर कर देगा, मीन्स तोड़ भी सकता है. तो दैट्स वाई हम इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रिक्शन वी यूज ऑयलिंग, ठीक है, वी कैन अप्लाई ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो यूज बॉल बेयरिंग टू रिड्यूस फ्रिक्शंस इन द मशीनरी पार्ट्स. सो दैट्स वाई इट कैन बी क्लासिफाइड एज necessary force, and it can also be classified as unnecessary force. ठीक है, so frictional force हमेशा याद रखना are the opposing force which always comes into play whenever one body tends to move on another body, and it always acts parallel to the surface. ये इस surface के हमेशा parallel ही लगेगा, ठीक है. So now let us discuss about what is tension force. Tension का मतलब क्या होता है? Tension force always acts in spring. एक बॉडी ले लो आप, ठीक है, उसको टाई करो एक स्ट्रिंग से, और ये अपने वेट की वजह से नीचे जाना चाहेगा, बट ये नीचे नहीं जा पा रहा बिकॉज ऑफ द टेंशन, और ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्स प्रोड्यूस विद इन दिस स्ट्रिंग विच इज कॉल्ड एज टेंशन. सो वेट से नीचे जाना चाहेगा बट ये टेंशन इसको ऊपर हेल्ड करके रखेगा. सो दिस टेंशन अगेन ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है, ठीक है. सो दिस टेंशन मस्ट बी इक्वल टू इट्स वेट ऑफ दिस बॉडी. सो टेंशन कब जीरो हो पाएगा? जैसे बॉडी मैं ऊपर ले जाऊं, ठीक है, इट विल स्लैक, ये पूरा वायर क्या, ये आपका थ्रेड स्लैक हो जाएगा, ठीक है, तो इस पे फोर्स अब जीरो हो जाएगा, मीन्स टेंशन इन द स्ट्रिंग इज जीरो. जैसे ही अब ये इसको, सो दैट मीन्स द टेंशन कैन ऑलवेज बी कैलकुलेटेड व्हेन द स्ट्रिंग इज टाइड, ठीक है. सो टेंशन का बहुत सारे आप आगे जितने भी आगे चैप्टर्स आएंगे, पुलिस सिस्टम्स, वहाँ पे आप अच्छी तरह से टेंशन के बारे में पढ़ोगे. ओके यार, द फोर्थ इज योर स्प्रिंग फोर्स. मीन्स स्प्रिंग फोर्स क्या करता है? देखो, स्प्रिंग एज द नेम इम्प्लाइज इट, दीज आर द फोर्सेस विच एक्ट्स विद इन द स्प्रिंग. एक स्प्रिंग लिया, दूसरे एंड उसको आप क्या कर दो, अटैच कर दो, तो एक दूसरे एंड पे, अनदर एंड पे आप एक ब्लॉक अटैच कर दो, उसको पुल करो आप. एक्स फोर्स से आपने टुवर्ड्स राइट पुल किया, पुल करने के बाद उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्प्रिंग फोर्स, ठीक है. दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्प्रिंग फोर्स. इतने फोर्स एंड इट इज इक्वल टू k इंटू एक्स, वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग एंड x इज द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग. सो दैट मीन्स कि kx फोर्स से वो वापस आना चाहेगा उसी पोजीशन पे, ठीक है. सो दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्प्रिंग फोर्स. एंड व्हाट इज k ओवर हियर? हर एक स्प्रिंग का आपका कोई स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, वो आपको ऑलरेडी गिवन होगा. सो एज ऑफ नाउ these are the classification of contact force जो हमने आज पढ़ा. Okay, in this session we'll be learning about some of the aspect of non-contact force. Okay, non-contact force is divided into gravitational force, electrostatic force and magnetic force. As the name implies, non-contact, that means कि उन दोनों के बीच में the two bodies which are into consideration should not be in physical contact, or it may or may not be in physical contact. Suppose करो मैं एक body ये ले लेता हूँ, दूसरा body ये ले लेता हूँ, they may or may not be having the contact with each other. Okay, so first gravitational force पढ़ते हैं हम. What is gravitational force? As you might have heard about universal gravitational law, it says two bodies which are having masses, they will always attract towards each other with a force
which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. That means कि अगर दो बॉडी है जिसके पास भी मासेस है, सपोज करो इसका मास m1 है दूसरे का मास m2 है, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. एज यू कैन सी इन दिस PDF, this gravitational force is equal to g m1 m2 divided by r square. It is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. And g is the proportionality constant, or also called as universal gravitational with constant. इसकी वैल्यू है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg होल स्क्वायर. सो ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी को हमेशा अट्रैक्शन में रखेगा एंड दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर. सो हम कह सकते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. मतलब फंडामेंटली फिजिक्स में एज ऑफ नाउ वी हैव डिस्कवर्ड 4 फोर्सेस, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक nuclear force and strong nuclear force. Nuclear force is the strongest force in nature, then comes your electrostatic force, then comes your weak nuclear force, then comes your gravitational force which is the weakest force in nature. सबसे weakest यही होता है gravitational force. ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो. एज यू कैन सी इन दिस PDF, एग्जाम्पल्स का क्या क्या हो सकता है. अर्थ इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सन एंड इट इज रिवॉल्विंग इन दिस पर्टिकुलर ऑर्बिट. And moon is also attracted towards the earth with a force which is called gravity, and it always circulates around earth with a force which is equivalent to gravity. ठीक है. So now let us discuss about what is electrostatic force. Electrostatic force are the forces which comes into play whenever two charged bodies comes near to each other or comes in vicinity. Charged body का मतलब कि सपोज चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो सपोज करो इनिशियली इस पे चार्ज नहीं था, इस बॉडी पे चार्ज नहीं है, तो हमने पहले हमने पढ़ा हुआ है कि द एटम्स, ये द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स. ठीक है, एंड एटम इज इन फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, एटम हैविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. अगर इसका इन दोनों बॉडी को हम रब करें तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में बाहर में जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है. तो द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन becomes positively charged and the body which gains electron becomes negatively charged because the electrons having negative charge and proton are having positive charge. So कोई भी दो बॉडी जिसके पास चार्ज अप है, सपोज करो दिस इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, दिस इज आल्सो हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों को पास में लेके आएंगे. ठीक है, दे विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ये. ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होता ये नेगेटिव होता, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, सो याद रखना whenever a two charged body comes near to each other or comes in vicinity, they will always experience a force that is called as electrostatic force, and they may repel each other and they may attract each other. ठीक है, so if the charges, that is the charges on the bodies are like मतलब as you can see in this PDF, like charge मतलब एक जैसे चार्ज. अगर पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव है दैट मीन्स अनलाइक चार्जेस विल ऑलवेज attract each other. ठीक है, so these are the properties of electrostatic force. The like charge will always the like charge repel each other and unlike charge attract each other. ये कितने फोर्स से रिपेल करेंगे और कितने से अट्रैक्ट करेंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस. चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम. सपोज करो इस बॉडी का चार्ज Q1 कूलम है, इस बॉडी का चार्ज Q2 कूलम है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r अपार्ट. So the force with which they will attract or repel each other is equivalent to K Q1 Q2 divided by R square. What is K over here? K is again a constant whose value is 9 into 10 to the power 9 Newton per Newton meter square per coulomb square. So this is one of the constant, and this constant is only for वैक्यूम और एयर. अगर दो बॉडीज को हम एयर में रखेंगे तो K की वैल्यू ये रहेगी, और वैक्यूम में रखेंगे इन दोनों को तो हम एयर की K की वैल्यू भी यही रहेगी. सो दिस इज दीज आर द एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एंड दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड द यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज कूलम. सो एक किसी भी बॉडी पे चार्ज हम मेजर करेंगे कूलम में, सो द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. ठीक है, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट
some of the aspect of magnetic force. Magnetic force होता क्या है और magnetic force क्या करता है? So as the name implies, magnetic force का मतलब whenever two magnets will come near to each other, they may attract or they may repel each other. ठीक है? So we have already learned about कि magnet के दो poles होते हैं. They always have magnet have north pole and south pole. So magnets are having two poles, north and south pole. Each magnet would have two poles, north and south. There cannot have a magnet who's having a single polarity, means उसके पास एक single south pole या single north pole नहीं होगा किसी भी particular magnets में. अगर मैं magnets को तोड़ भी दूं बीच से, again north and south develop हो जाएगा दूसरे एक magnet में, दूसरे magnet में भी north and south develop हो जाएगा. So suppose करो साउथ पोल एंड साउथ पोल को मैं पास लेके आता हूँ. सो व्हाट विल हैपन, दीज आर द लाइक पोल्स, साउथ साउथ एक जैसे पोल्स हैं तो दे विल रिपेल ईच अदर. अगर ये नॉर्थ होता ये साउथ होता तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. अगर मैं पास लेके आऊँ तो दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है. सो हम कह सकते हैं द लाइक पोल्स विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. ओके. सो नाउ will be studying what an force can bring in one particular body, what a force can bring a change in one particular body. ठीक है. So हम पहले भी पढ़ चुके हैं, force can change the state of rest or uniform motion of a body and it can also change shape and size of a body. ठीक है. So that means कि अगर मैं इस body पे if it is free to move, अगर ये freely move कर रहा है, इसमें मैं force लगाऊं तो it will translate. That means it will move in a straight line. The straight line motion is also called as translational motion. Each and every portion of this body will translate, move in a straight line. अगर ये body ऐसे है, इस पे force लगाओ आप, it will so that means it will move towards right. So that means कि हर एक portion body का move करेगा parallel to itself. ये वाला body भी parallel ही जाएगा. ठीक है. इस बॉडी का ये वाला पार्ट भी पैरेलल जाएगा, ये वाला पार्ट भी पैरेलल जाएगा, तो इट विल मूव पैरेलल. सच अ मोशन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं उसको हम. ठीक है. सो ट्रांसलेशन मोशन विल ऑलवेज कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर द बॉडी इज फ्री टू मूव. सपोज करो अगर दूसरा बॉडी, एक बॉडी लिया हमने, उसको एक पॉइंट से आपने फिक्स कर दिया, दूसरे एक जगह आपने एक one of the end is fixed and other end is free to move. अब मैं फोर्स लगाऊं तो what will happen, इधर से फोर्स लगा हुआ अपवर्ड डायरेक्शन से, इट विल रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट विल रोटेट. तो दैट मीन्स द फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द टर्निंग इफेक्ट इन द बॉडी. सो फोर्स क्या करेगा, बॉडी को रोटेट भी करा सकता है. ओनली द कंडीशन इज इट हैज टू बी फिक्स्ड फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पाइवटेड पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट भी कहते हैं हम उसको. ठीक है. एंड इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट. इधर से अप्लाई करो, इट विल रोटेट द बॉडी. सो दैट मीन्स the only thing has to be there is the body has to be fixed. ठीक है. So we can say that the force can also bring about rotation within the body, or which is also called as turning effect within the body.